Welcome back to this channel Rise Up with Maths. My name is Rahim Samnani, and in this video we'll discuss about derivative of parametric function. First of all, we'll try to understand what parametric function is, and then we'll solve the exercise problems. So let's get started. Derivative of parametric function. देखो अभी तक क्या होता था, आपको ना एक इक्वेशन देकर रहता था y इक्वल्स टू के फॉर्म में या f ऑफ x इक्वल्स टू के फॉर्म में, है ना। बट अब से ना आपको दो इक्वेशन दिखेंगे। देखो जैसे यहाँ पर देकर है x इक्वल्स टू 80 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 280। ठीक है, सो दो इक्वेशंस देकर है। अभी सबसे पहला अपना काम क्या है, अपने को ये दोनों इक्वेशन में पैरामीटर क्या है वो फाइंड करना है। ठीक है, सो मेरे को बताओ दोनों भी इक्वेशन में कॉमन क्या है। देखो a कॉमन है और t कॉमन है, बट a है वो कांस्टेंट है, तो t जो दूसरा कॉमन है। ठीक है, सो t इज नथिंग बट द पैरामीटर ऑफ बोथ द इक्वेशन। ठीक है, सो t एक ऐसी कड़ी है जो दोनों इक्वेशन को कनेक्ट करती। ठीक है, सो t इज अवर पैरामीटर। ऑलराइट, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। आपको दो इक्वेशन देकर रहेंगे, आपको वो दोनों इक्वेशन में पैरामीटर क्या है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ सेकेंड स्टेप इज आप है ना ये दोनों भी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसा पैरामीटर क्या है t है, तो अपन इसको दोनों भी इक्वेशन को t से डिफरेंशिएट करेंगे। तो देखो x को अगर अपन t से डिफरेंशिएट करें तो क्या होता, ये होता dx अपॉन dt। राइट, विथ रिस्पेक्ट टू t अपन डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो ये होगा dx अपॉन dt। और y को विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा dy अपॉन dt। ओके, बट अपने को ना क्वेश्चन में dx अपॉन dt या dy अपॉन dt निकालने के लिए नहीं बोलेंगे। अपने को क्वेश्चन में बोलेंगे कि dy बाय dx निकालो, तो dy बाय dx कैसा निकालेंगे। ऑलराइट, तो इसके लिए अपने पास में एक थ्योरम है। तो थ्योरम क्या बोलता कि dy बाय dx इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ठीक है, सो dy बाय dx आपको निकालना है, तो dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो आएंगी डिवाइड बाय इसकी वैल्यू। So this is how we find dy by dx. ठीक है, so this is the basic for parametric function. I hope you got it. So now let's solve the exercise problems. Now in exercise 1.4, question number 1 में we have got total 8 sub questions. They are very easy. अपने को dy by dx find करना है. Okay, so let's start with the first question. The question is find dy by dx if x equals to 80 square and y equals to 280। ठीक है, दो इक्वेशंस देकर है अपने को, x equals to 80 square and y equals to 280। अभी आप बताओ कि दोनों में कॉमन क्या है, t, right? So t is our parameter. Okay, so differentiate both the equation with respect to t. Take the first equation x equals to 80 square, differentiating with respect to t. All right, so x का derivative with respect to t is dx by dt equals to a is coefficient, so as it is t square with respect to t is 2t। ठीक है, जैसे x square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था 2x, तो सिमिलरली t square का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t is 2t। ऑलराइट, सो दिस विल बिकम 280। ठीक है, नंबर फर्स्ट, सो 280 dx upon dt equals to 280। give this as equation 1। take the second equation y equals to 280, differentiate it with respect to our parameter t। okay, so this will become y का derivative is dy by dt with respect to t equals to 2a is coefficient, so 2a is as it is, t का derivative with respect to t is 1। ठीक है, जैसा x का derivative with respect to x 1 होता था, similarly t का derivative with respect to t is 1, so 1 into 2a is 2a। ठीक है, so dy by dt equals to 2a। give this as equation 2। now we need to find dy by dx। okay, so अपने को थ्योरम पता है dy by dx is dy by dt upon dx by dt। dy by dt is 2a, so 2a upon dx by dt is 280। so 2a gets cancelled, तो बचेगा 1 upon t, so dy by dt equals to 1 upon t। okay, now let us look at the second problem। x equals to a cot theta, y equals to b cosec theta। ठीक है, दो इक्वेशन देकर है x के फॉर्म में y के फॉर्म में। now let us find out the parameter। parameter is theta। okay, देखो दोनों में भी theta कॉमन है, so theta is the parameter, so differentiate both the equation with respect to theta। take the first equation x equals to a cot theta,
differentiating with respect to theta. So this will become dx upon d theta. All right, dx upon d theta equals to a, the coefficient as it is. Cot theta का derivative is, cot x का derivative is minus cosec square x. So cot theta का derivative is minus cosec square theta. All right. So this will become minus a cosec square theta. Give this as equation 1. So dx by d theta equals to minus a cosec square theta. Now take the second equation, y equals to b cosec theta. Differentiating with respect to theta, तो y का होगा dy by d theta equals to b, the coefficient as it is. Cosec theta का derivative is minus cosec theta into cot theta. All right. So ये हो जाएगा minus b cosec theta into cot theta. dy by d theta equals to minus b cosec theta into cot theta. Give this as equation 2. Now we need to find dy by dx. So dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. So dy by d theta is minus b cosec theta into cot theta upon dx by d theta is minus a cosec square theta. Alright. अभी माइनस माइनस कैंसिल, देखो यहाँ पे कोसेक थीटा है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है, मतलब दो बार कोसेक है, तो एक बार आप कोसेक को कैंसिल करो तो बचेगा b अपॉन a. देखो अभी कॉट थीटा को आप कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा को आप लिखो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है. और डिनोमिनेटर में क्या बचा था, खाली कोसेक थीटा बचा था, राइट. सो 1 अपॉन कोसेक थीटा इज साइन थीटा, सो राइट हियर साइन थीटा. ओके, नाउ साइन थीटा एंड दिस साइन थीटा विल गेट कैंसिल. So finally बचेगा dy by dx equals to b upon a cos theta. Okay, so this is the answer of second question. Alright, now let us look at the third question. The question is x equals to root a square plus m square, and the second equation is y equals to log of a square plus m square. ठीक है, so first of all let us find out the parameter. So parameter is, देखो a जैसा मैंने बोला constant है, so here अपना parameter m square common है, ठीक है. बेटा अपन m स्क्वायर को पैरामीटर नहीं, पैरामीटर इज सिंपल, तो पैरामीटर होगा m, ठीक है. m स्क्वायर से कैसा डिफरेंशिएट करेंगे, राइट. तो पैरामीटर m स्क्वायर नहीं, पैरामीटर इज m. ऑलराइट, सो डिफरेंशिएट बोथ द इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू m. सो टेक द फर्स्ट इक्वेशन x इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू m द पैरामीटर. सो दिस विल बिकम dx अपॉन dm. ऑलराइट, dx upon dm as we are differentiating with respect to m equals to, देखो ये root x के फॉर्म में, तो root x का डेरिवेटिव is 1 upon 2 root x, so this will become 1 upon 2 root a square plus m square. ठीक है, अभी यहाँ पर देखो रूट के अंदर में x नहीं है, a square plus m square है, तो a is constant, so constant का square is also constant, so constant का डेरिवेटिव is 0 plus m square का डेरिवेटिव होगा with respect to m 2m. okay, now this 2 and this 2 will get cancelled, 1 into m is m, so m upon root a square plus m square. Okay, so dx by dm equals to m upon root a square plus m square. Give this as equation 1. Take the second equation, y equals to log of a square plus m square, differentiate it with respect to a parameter m, so this will become dy by dm equals to log x का derivative is 1 upon x, so this will become 1 upon a square plus m square. ठीक है, बट यहाँ पे x नहीं है, a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर है, a स्क्वायर इज कांस्टेंट, सो 0, m स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2m. ऑलराइट, सो 1 into 2m is 2m upon a square plus m square. Okay, so dy by dm equals to 2m upon a square plus m square. Give this as equation 2. Alright, now we need to find dy by dx. So dy by dx is dy upon dm. ठीक है, आपको हर बार ये चेंज करना पड़ेगा एज पर द क्वेश्चन. यहाँ पर देखो dy अपॉन dt नहीं है या d थीटा नहीं है, यहाँ पर m है, सो dy by dx हो जाएगा dy by dm अपॉन dx by dm. ओके, आई होप यू गॉट इट. सो dy by dx equals to dy by dm अपॉन dx by dm. dy by dm is 2m upon a square plus m square अपॉन dx by dm is m upon root a square plus m square. ठीक है, अभी जो डिनोमिनेटर में है ये ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा. ठीक है, तो यहाँ पे बहुत फेंट हैंड राइटिंग में दिख रहा होगा आपको, 2m अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू ये नीचे वाला ऊपर आएगा, सो रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर. इन केस यू आर नॉट एबल टू सी, फॉलो माई वॉइस, रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एम. ठीक है, तो ये 2m वाला m और ये वाला m अपन कैंसिल करेंगे, तो 2 into root a square plus m square is 2 root a square plus m square upon
देखो अभी डिनोमिनेटर में यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, राइट, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको अपन रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। जैसे फाइव है तो फाइव को अपन रूट फाइव इंटू रूट फाइव लिख सकते हैं, तो सिमिलरली इसको अपन लिखेंगे रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। अभी रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऊपर वाले न्यूमरेटर के साथ में कैंसिल कर दो, तो फाइनली बचेगा 2 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। Okay, so dy by dx is 2 upon root a square plus m square. This was question number 3. Now let us look at the fourth and fifth question. Okay, we are not looking at it. This is homework for you. Okay, the fourth and fifth question is homework for you. Do it by yourself. And if you want to see the solution, you can check the description box and you can download the PDF file from there. All right, now let us look at the sixth question. The question is x equals to t plus 1 upon t whole to the power a. And the second equation is y equals to a to the power t, a to the power t plus 1 upon t. Okay, where a is greater than 0, a not equals to 1 and t not equals to 0. Let us find out the parameter first of all. The parameter is t. Okay, so take the first equation, differentiate both the equation with respect to t. So x equals to t plus 1 upon t whole to the power a. Differentiating with respect to t, so x का होगा dx upon dt equals to, देखो ये x raised to power n के फॉर्म में है, राइट। तो क्या होता है x raised to power n is n x raised to power n minus 1. तो जो a है वो सामने आएगा t plus 1 upon t as it is and a minus 1. ओके, इनटू देखो अभी यहाँ पर x है क्या, नहीं, t plus 1 upon t है तो उसका डेरिवेटिव लो, t का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू t 1. Okay, and 1 upon t का डेरिवेटिव इज 1 upon t is similar to 1 upon x. 1 upon x का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू x इज minus 1 upon x square. तो सिमिलरली 1 upon t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज minus 1 upon t square. यहाँ पर प्लस था, इसका डेरिवेटिव minus 1 upon t square हुआ, तो साइन minus 1 upon t square हो गई. Okay, so dx upon dt is this. Give this as equation 1. Take the second equation, y equals to a to the power t plus 1 upon t, differentiating with respect to t. So y ka dy by dt equals to, now carefully look at this. This is in the form of a to the power x. a to the power x का derivative is a to the power x into log a, right? तो ये क्या होगा a to the power, ये t plus 1 upon t as it is into log a. Okay, but देखो यहाँ पर a to the power x है क्या, नहीं, t plus 1 upon t है तो उसका डेरिवेटिव, t का डेरिवेटिव इज 1 और 1 upon t का minus 1 upon t square. Okay, so give this as equation 2. So this is our dy by dt. तो अपने को dx by dt आ गया, dy by dt आ गया. Now we need to find dy by dx. So dy by dx equals to dy by dt upon dx by dt. Okay, so dy by dt is, ये पूरा आप कॉपी करके यहाँ पर लिखो, upon dx by dt is ये पूरा कॉपी करके आप इधर लिखो. Okay, अभी यहाँ पर देखो 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर दोनों में है तो ये कैंसिल कर दो. ओके, अभी आप यहाँ पर अच्छे से ध्यान दो. देखो यहाँ पर क्या है, a रेज टू पावर t प्लस 1 अपॉन टी, इसको अपन किससे रिप्लेस कर सकते, क्या देखो, a रेज टू पावर t प्लस 1 अपॉन टी, इसके जगह पे अपन y लिख सकते हैं, राइट. तो इसके जगह पे आप y लिखो तो ये हो जाएगा y इंटू लॉग ए, ये कैंसिल हो गया. ओके, y इंटू लॉग ए अपॉन a, देखो यहाँ पे t प्लस 1 अपॉन टी होल टू द पावर a माइनस 1 है, ठीक है. तो इसको अपन t प्लस 1 अपॉन टी होल टू द पावर a इंटू टी प्लस 1 अपॉन टी होल टू द पावर माइनस 1 ऐसा लिख सकते हैं. देखो बेस सेम है तो पावर को ऐड करेंगे तो a प्लस माइनस 1 तो a माइनस 1 ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है. सो इसको अपन ने स्प्लिट करके ऐसा लिखे है. ऑलराइट, अभी देखो आप t प्लस 1 अपॉन टी होल टू द पावर a को अपन रिप्लेस कर सकते हैं, यस. t प्लस 1 अपॉन टी होल टू द पावर a के बदले अपन x लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा a, इसके जगह पे आप x लिखो, a इंटू एक्स, ठीक है. और ये जो है रेज टू पावर माइनस 1 है, राइट. तो इसको अपन न्यूमरेटर लेकर जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये y इंटू लॉग ए और ये हो गया t प्लस 1 अपॉन टी, ओके, अपॉन में a इंटू एक्स. ऑलराइट, अभी ये t प्लस 1 अपॉन टी का आप एलसीएम लो तो एलसीएम इज t, सो दिस विल बिकम t स्क्वायर प्लस 1. ओके, डिनोमिनेटर में a इंटू एक्स है. अभी आप क्या करो, जो a इंटू एक्स है ना ये ऊपर चले जाएगा, मतलब ये t के पास में आ जाएगा. सो अवर आंसर इज y इंटू लॉग ए इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a इंटू एक्स इंटू t. Okay, so this is the answer of sixth question. I hope it is clear.
नाउ सेवेंथ एंड एट्थ क्वेश्चन दे आर लिटिल बिट डिफरेंट। देखो अपन ने सेकेंड एक्सरसाइज में सब्सटीट्यूशन देखे थे, राइट? सब्सटीट्यूट कब करते, तो सिमिलरली यहाँ पर भी अपने को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 7 इज x इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। तो आप इसको केयरफुली देखो, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर दिस इज सिमिलर टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना? यहाँ पर x नहीं है, t है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये वाले केस में अपन क्या, ऐसा जब भी रिया तभी अपन x के जगह पे tan थीटा पुट करते थे, तो यहाँ पे अपन t के जगह पे tan थीटा पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, उसके बाद में अपन डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, सो टेक द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, आप t के जगह पे tan थीटा पुट करो। ठीक है, तो थीटा इज tan इनवर्स t, ये अपने को काम में नहीं आने वाला है, आप नहीं लिखे तो भी चलता। So put t equals to tan theta. So t के जगह पे आप tan theta put कर दो. So this will become x equals to cos inverse of 2 tan theta. t के जगह पे tan theta लिखे upon 1 plus t square, that is tan square theta. Okay. Now देखो 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, ये किसका फॉर्मूला है? 2 tan theta upon 1 plus tan square theta is sin 2 theta. तो इसके जगह पे आप sin 2 theta लिखो, cos inverse of sin 2 theta. देखो यहाँ पे cos इनवर्स है, यहाँ पे मैं, यहाँ पे sin है, तो मेरे को इसको cos के फॉर्म में करना है, तो इसको मैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा लिख सकता, राइट? तो cos और cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अभी अपन यहाँ पे स्टॉप हो जाते, डिफ्रेंसिएशन वाला पार्ट में आपको थोड़ी देर से बताता। अभी आप सेकेंड वाला इक्वेशन लो। सेकेंड वाला इक्वेशन इज y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पर अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर अपने t की जगह पे tan थीटा पुट किए, तो सिंपली यहाँ पर भी आप t की जगह पे tan थीटा ही पुट करो। ओके, सो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू सेक इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस t के जगह पे tan थीटा, सो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज sec स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पे अपने sec स्क्वायर थीटा लिखे। अब ये sec स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये sec थीटा बचेगा। ठीक है, सो sec इनवर्स ऑफ sec थीटा, तो sec और sec इनवर्स कैंसिल, सो y इक्वल्स टू थीटा। ऑलराइट, अभी ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन आप ऑब्जर्व करो, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, y इक्वल्स टू y इक्वल्स टू थीटा। अभी आप पैरामीटर फाइंड करो, क्या है पैरामीटर इधर? थीटा, राइट? सो डिफरेंशिएट बोथ दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा। So differentiating with respect to theta, so this will become dx upon d theta equals to pi by 2 is constant, minus 2 theta का derivative is minus 2. So this is our equation 1. अपने को dx upon d theta आया. Similarly differentiate this equation with respect to theta. Differentiating with respect to theta, इसको आपको differentiate करना है. So y का derivative is dy by d theta equals to theta का derivative with respect to theta is 1. Give this as equation 2. Now we need to find dy upon dx. So dy upon dx is dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta is 1 upon dx by d theta is minus 2. अपन देखो माइनस को कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रखते, ठीक है? तो इसको आप ऊपर लेकर जाओ, तो dy upon dx is minus 1 upon 2. So this is the answer of 7th question. ठीक है, so यहाँ पर अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ा था। ठीक है, एथ क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट द एथ क्वेश्चन। x इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 4t क्यूब माइनस 3t एंड y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन t। ठीक है, तो अभी यहाँ पर भी अपने को सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 4t क्यूब माइनस 3t है, जाना पहचाना सा लग रहा है ना? यहाँ पे 4x क्यूब माइनस 3x है, तो जब भी ये रिया तभी अपन x की जगह पे cos थीटा पुट करते। ठीक है, तो यहाँ पर अपन t की जगह पे cos थीटा पुट करेंगे। ओके, so take the first equation, x equals to cos inverse of 4t cube minus 3t and t के जगह पे आप cos थीटा पुट करो। ठीक है, ये वाला पार्ट आप नहीं लिखे तो भी चलता, because it is useless, right? So put t equals to cos थीटा। ओके, t की जगह पे आप cos थीटा पुट कर दो, तो x equals to cos inverse of 4, t के जगह पे cos थीटा पुट करना है, तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ऑलराइट, अभी आप इसको देखो, 43 वाला एक फॉर्मूला देखे थे अपने, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, दिस इज द फॉर्मूला फॉर cos 3 थीटा, राइट? रिमेंबर? सो इसके जगह पे आपको cos 3 थीटा लिखना है। सो cos 3 थीटा और यहाँ पर cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स cos कैंसिल, सो x इक्वल्स टू 3 थीटा।
Okay, now before differentiating, let us take the second equation. The second equation is y equals to tan inverse of root 1 minus t square upon t. ठीक है, सिंपली यहाँ पर अपन ने cos थीटा पुट किए तो यहाँ पर भी अपन cos थीटा ही पुट करेंगे t की जगह पे. So y equals to tan inverse of root 1 minus cos square theta upon cos theta. Okay, now see 1 minus cos square theta is sin square theta, right? So sin square theta root में upon cos theta. देखो अभी square और root cancel हो जाएगा तो ये बचेगा sin theta upon cos theta. Now sin theta upon cos theta is tan theta. Tan inverse of tan theta, tan और tan inverse cancel, so y equals to theta. ठीक है, यहाँ पे क्या है x equals to 3 theta और y equals to theta. Parameter is theta. So differentiate both the equation with respect to theta. So differentiating with respect to theta, so this will become dx upon d theta equals to 3 theta का derivative with respect to theta is 3. Okay, give this as equation 1. And similarly, y का derivative with respect to theta is dy by d theta equals to theta का derivative with respect to theta is 1. Okay, give this as equation 2. Okay, I forgot to give it as equation 2. You must write it. Now we need to find dy by dx. So dy by dx is dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta is 1 upon dx by d theta is 3. Okay, so this is the answer of 8th question. Okay, so that's all for this question, question number 1. If you find this video helpful, please subscribe our channel, share it with your friend, and thank you so much for watching.